दिन के 11 बज चुके हैं। आज का दिन खबरों के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग कर्नाटक विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान करने वाला है। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की साख दांव पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक कर्नाटक के कई दौरे कर चुके हैं, तो अमित शाह वहां 2 दिन के दौरे पर इस समय पहुंचे हुए हैं। इससे पहले राहुल गांधी भी कर्नाटक में मठ और मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। दूसरी तरफ संसद में आज मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो सकता है। मोदी सरकार के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव होगा। इसके अलावा मोदी सरकार को 2019 में मात देने के लिए तीसरे मोर्चे के लिए नेताओं की मोर्चाबंदी तेज हो गई है। ममता बनर्जी 4 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं, तो शरद पवार ने आज डिनर का आयोजन किया है। चौथी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार यूपी कोका बिल पेश करेगी। तो 4 बड़ी खबरें 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर में हो सकता है। बस थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कर्नाटक की मौजूदा विधानसभा में 224 सीटों के लिए चुनाव होना है। मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। 2013 के चुनाव में कांग्रेस को 122, बीजेपी और जेडीएस के 40-40 विधायक हैं। फिलहाल जेडीएस के 7 विधायक कांग्रेस में चले गए हैं। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर बाद होने वाली है। हम ये बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। और इस चुनाव की, कर्नाटक चुनाव की बहुत अहमियत है, क्योंकि कांग्रेस के लिए जो 4 स्टेट्स बची हैं उसमें कर्नाटक बहुत बड़ी स्टेट है और ये सांप की लड़ाई भी है। और गुजरात के बाद कांग्रेस का जो मोराल है वो बहुत हाई है। ये चुनाव आयोग से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, वो सुन लेते हैं। On 28th of May 2018, and as per the Constitution and the laws, Commission is required to hold general election to constitute new assembly before the expiry of its term, that is before 28th of May. The total number of assembly constituencies there are 224, out of which 36 are reserved for scheduled castes and 15 are reserved for scheduled tribes. As you know, every year we have summary revision of electoral rolls with reference to 1st of January. In Karnataka, this was carried out with reference to 1st January, and the final publication was done on 28th of February 2018. The number of electors in the draft roll were 4.90 crores. In the final rolls, 4.96 crores. To be exact, 4,96,82,357. Repeat. In the draft roll, 4.90 crores, and in the final roll, 4,96,82,357. As against 4,36,85,000 voters in 2013 election. Out of this, males 2,51,79,219, females 2,44,76,840. And you will be happy to note that elector population ratio in Karnataka is 72, which is very close to whatever is the ratio of population above 18 years to the total population, and even gender ratio is very close. Like census 2011 gender ratio is 973, and in electoral rolls it has come up to 972. So it is very close to the ground reality. As regards electoral rolls, we have photo electoral rolls almost 100%. To be exact, 99.47% are photo electoral rolls. Only a few photographs are not available. And electors' photo identity cards have also been issued to 97.46%. However, we also issue photo voter slips 7 days before the day of poll to all the voters
so that to facilitate them to come to polling station and vote. This can be used as even identity document. With the photo voter slip, a voter guide will also be given to each family. This will be in Kannada, and whomsoever wants in English will be in English. As regards polling station, in 2013, 52,034 polling stations were there, and now after this final publication and rationalization of polling stations, 56,696 polling stations are there, an increase of almost 9%. This year the theme of Election Commission is accessible elections, and therefore we have a special focus on affording convenient registration and voting to persons with disabilities. With that in view, assured minimum facilities at all polling stations have been reviewed by the Commission in their first visit to the state of Karnataka, and you will be happy to note that this aspect is being taken care of by the local administration on top priority. Then voter facilitation. For this, in order to fulfill the statutory requirements under Rule 31 of the Conduct of Elections Rules 1961 and to provide accurate and relevant information for voter awareness and information at each polling station, the Commission has also directed that uniform and standardized voter facilitation posters shall be displayed on all polling stations for greater facilitation, and voter assistance booths will also be set up at every polling station to augment the voter facilitation. Special arrangements are being made for women. In fact, all women managed polling stations, including the security, will be 5 in every urban constituency and 1 in every rural constituency. So in all, more than 450 polling stations will be managed by all women. As you all know, that Commission had committed to all parties that along with the electronic voting machines, VVPAT shall be deployed in all future elections, and therefore in line with that decision, all polling stations will have electronic voting machine and VVPAT deployed there. As regards VVPAT counting, the same pilot phase, one randomly selected polling station, slips to be counted, will apply here. Then photographs of the candidates will also be available on the ballot, which will be affixed to the electronic voting machine so that every voter can see. This information is very important for the voters, and the Commission would like that through you it reaches all the voters of Karnataka. Then electronically transmitted postal ballot, as notified in 2017, will be available to all service voters and all voters who are serving in Indian missions abroad. Final publication of service voter rolls has been done on 31st January in Karnataka, and continuous updation is on. Then affidavits. As you may be aware that according to judgment of 13th September by Supreme Court, 13th September 2013, it is obligatory for the returning officer to check whether the information required is fully furnished by the candidate at the time of filing of affidavit with the nomination paper, and it should have all the details of antecedents of all the cases, criminal cases where charges have been framed. Then additional affidavit for no dues. This is in pursuance of Delhi High Court's order in Krishak Bharat versus Union of India, that for Parliament and state legislature, an affidavit needs to be filed with no dues, so that it is clear that
all the utilities, if government accommodation was occupied by the candidate, the no-dues certificate is there. Then certain changes have been brought in forms and affidavit in Form 26, which are already there on the Commission's website and have been informed to all the CEOs to be brought to the notice of all the prospective candidates. Now, Model Code of Conduct. As you may be aware that from the day of announcement, immediately, Model Code of Conduct comes into effect immediately. From now onwards, all the provisions will apply to the whole of the state of Karnataka and will be applicable to all the candidates, political parties, state government. The Model Code of Conduct shall also be applicable to the Union of India, Union Government, in so far as announcements, policy decisions pertaining to the state of Karnataka are concerned. Commission has taken certain community people-friendly measures like preventing public nuisance. Commission have instructed that eco-friendly substances must be used for all kind of campaign propaganda material, like use of plastic, polythenes, flaxes. All those things should not be there because these are non-biodegradable and cause a lot of environmental hazards. Similarly, use of loudspeakers also is regulated to ensure that people can sleep in night, that it cannot be used between 10 p.m. and 6 a.m. and also not in the vicinity of certain institutions, especially educational institutions and where people gather together for important deliberations, hospitals, etc. Law and order. This is very important because Karnataka elections have seen certain offences in the past elections, and therefore Commission has decided to deploy adequate central armed police force to maintain law and order, to have area domination, to ensure that people refrain from indulging in any kind of violence or any kind of breaking of law. It will be monitored on regular basis by the CEOs, by the DEOs in districts, and even Commission will be monitoring closely. Then protection of voters of weaker sections. Commission has given directions to all concerned that voters belonging to all weaker sections, especially scheduled caste, scheduled tribes, minorities, women, disabled, they should be provided full protection to ensure that they are facilitated to participate freely, fearlessly in the polling process. Karnataka is also expenditure sensitive state, and therefore election expenditure monitoring, SOP, instructions, guidelines, etc. have been issued in detail, which will be enforced. Flying squads will be there with GPS, so that any complaint coming, it can easily be monitored that whatever spot is in the complaint, the flying squad is going in that direction. Commission has always been saying that they must display absolute neutrality, impartiality, and discharge their duties in without any fear or favor. Then poll day monitoring system, all electronic media monitoring and other monitoring of grievances, etc. will be conducted as was being done usually. Now, the schedule. The Commission, after considering all relevant aspects such as climate, academic and examination calendar, major festivals, prevailing law and order situation in the state, availability of central police force, time needed for their movement and induction, de-induction, transportation, and timely deployment of forces and in-depth assessment of other relevant ground realities while scheduling the polling. The Commission, after considering all relevant aspects, has decided to recommend to the Governor of the State of Karnataka to issue notification
for the general elections under relevant provisions of the Representation of People Act 1951. The Commission seeks the active cooperation, close collaboration and constructive partnership of all the esteemed stakeholders, including political parties and media, in the electoral process and strives to employ the General Assembly elections, employ the collective synergies towards delivering a smooth, free, fair, peaceful, participative and festive election in Karnataka. Now the date. Date of issue of notification. 17th April 2018. It is a single phase election because when Commission visited Karnataka, almost all the parties were of the view that it should be a single phase election, and therefore, keeping in view their demand, it is single phase election with notification on 17th April 2018. Last date of nominations 24th April 2018. Date of scrutiny of nominations 26th April 2018. Last date for withdrawal of candidatures is 27th April 2018. Now your issue comes. Date of poll is 12th May. Yeah. Date of counting is 15th May. Oh, too bad. They got it wrong. They got it wrong. Thank you very much, sir. Right? So, Will there be bypass also in Kerala and UP? let us discuss Karnataka first and then, yeah, please. आशीष from India TV। ये प्लीज क्लियर कर दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग ने अभी तारीख का ऐलान नहीं किया और बीजेपी के मीडिया सेल के हेड अनाउंस कर रहे हैं। इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आप कह रहे लेंगे, क्या एक्शन लेंगे? Definitely. ऐसा कोई ट्रेंड चैनल को कोट कर रहे हैं। Definitely, it will be investigated, and when investigation delivers certain facts, its responsibility and whatever action legally and administratively befitting to the occasion will be taken. Please rest assured. इसको हिंदी में बता दिया था। पहली बार इलेक्शन कमीशन की औपचारिक ऐलान से पहले ही बाकायदा करके पॉलिटिकल पार्टी का इस पर कानून के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से कठोरतम कार्रवाई करने में कमीशन बिल्कुल हिचकेगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी फैक्ट्स आते हैं, जो भी जिम्मेदारी तय होती है, उसके आधार पर। Sir, now that you are forum undertakes, now my question is, if any related to other states, central government can announce, because the Kaveri Management Board still pending, the court is given the 3 weeks time, so it's going to end on the 31st. So it can be Government of India can announce the Kaveri Management Board. It will come under the Election Commission Board of Conduct. Whatever is the direction or order of the Honorable Court and compliance thereof, Commission and the MCC doesn't come in the way. Sir, Uttar Pradesh, Kerala. Okay, Neeraj. ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के लिए, और आमतौर से विपक्ष जो है आप लोग से ईवीएम से क्वेश्चन करते रहे हैं। आप लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक विधानसभा की एक मतदान बूथ को लिया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर। तो कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। एक सिंगल फेज में ये पूरा इलेक्शन किया जाएगा। 12 मई को वोट डाले जाएंगे, 15 मई को काउंटिंग होगी। जो नोटिफिकेशन है वो 17 अप्रैल को हो जाएगा, और एक फेज में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सिंगल फेज में कर्नाटक में चुनाव होगा। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। शांतनु कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शांतनु जी, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेती हूँ। सिंगल फेज, बहुत बड़ी स्टेट है कर्नाटक, सिंगल फेज, इसको आप कैसे देखते हैं?
जी, जैसे डिक्लेयर होने से पहले हम स्टूडियो में बात कर रहे थे, हमने सोचा था कि कर्नाटका का लॉ एंड ऑर्डर ट्रेडिशनली अच्छा रहा हिस्टोरिकली, तो शायद 3 फेज में 2 फेज में, क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा है, 224 बहुत बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा स्टेट है, तो एक फेज में सुनने में एक तरह में आश्चर्य हुआ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से होल्ड करी वो देखने में मजा आया। उन्होंने बहुत सारे फैक्टर बताए कि क्लाइमेट को देखकर, एकेडमिक कैलेंडर को देखकर, लॉ एंड ऑर्डर और मूवमेंट ऑफ फोर्सेज को देखकर, एग्जाम के शेड्यूल को देखकर, फेस्टिवल्स को देखकर, और क्योंकि उस समय कोई और बड़ा चुनाव भी नहीं है, तो सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, स्टेट की फोर्सेज है, उनको मिला के एक फेज में, सुनने में अच्छा लगा कि एक फेज में। और इको फ्रेंडली आइटम्स की भी बात करी, और इको फ्रेंडली आइटम्स की बात करी, और कहा कि कैसे डिसेबल फ्रेंडली इलेक्शन को बनाया जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगा सुनने में कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स को भी, चुनाव अपने आप में भी इतनी कठिन प्रक्रिया है भारत में चुनाव कराना, सबको वोटर कार्ड इश्यू करना, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट का भी ध्यान रखना बहुत अच्छा लगा सुन के प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदीप जी, सिंगल फेज में चुनाव स्टेट के लिए कितना मुश्किल होगा, पुलिस के लिए कितना मुश्किल होगा? हालांकि रिकॉर्ड अच्छा है कर्नाटक का, आप कैसे लेते हैं इसको, सिंगल फेज को? नहीं, मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पहले भी होता रहा है, पिछला चुनाव भी सिंगल फेज में ही हुआ था। तो कर्नाटक में जिस तरह, और खासतौर से इस समय और किसी राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहा है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की अवेलेबिलिटी पर भी कोई, उसके लिए भी कोई समस्या नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती थी कि सिंगल फेज में हो, तो ये इन बातों पर, इन ऐसे मसलों पर चुनाव आयोग, जो राजनीतिक दल हैं, उनकी राय को काफी महत्व देते हैं। अगर मतभेद हो तब आयोग अपना फैसला करता है कि कितने फेज में करे। मान लीजिए एक पार्टी कह रही कि नहीं 3 में कीजिए, दूसरी पार्टी कह रही 2 फेज में करिए, तब वहां इलेक्शन कमीशन जो है अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर सभी पार्टियां एकमत हैं कि सिंगल फेज में होना चाहिए, तो फिर चुनाव आयोग के लिए ज्यादा विकल्प बचते नहीं हैं। तो सिंगल फेज में है, अच्छा है कि एक बार में चुनाव का जो है शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार का जो भी है, अब आप देखिए आज से जो है शुरू हो जाएगा, आपको चुनाव प्रचार में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, ऐसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला होगा। नहीं, मंदिर मठ के जो सफर है वो शुरू हो चुका है, बहुत होने वाला है, बहुत हल्का था। ये चुनाव बहुत पेस पकड़ लेगा। ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बहुत अहम चुनाव है। कांग्रेस के लिए एक तरह से यहां से लोकसभा में कोई उसकी उम्मीद रहेगी या नहीं रहेगी, ये तय होगा। अगर कर्नाटक हार जाती है कांग्रेस, तो ये जो आप अलायंस की बात सुन रहे हैं, ग्रैंड अलायंस बनेगा और सारे विपक्षी दल एक होंगे, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी ये तय होगा। कांग्रेस जो है एक तरह से अलग थलग पड़ जाएगी, क्योंकि मुश्किल उसकी ये है कांग्रेस की कि जहां जहां वो उसका संगठन ताकतवर है, वहां उसकी बीजेपी से सीधी लड़ाई है, वहां बाकी पार्टियां नहीं है। जहां बाकी क्षेत्रीय दल है वहां कांग्रेस की हैसियत नहीं है कुछ, तो इसलिए जो है कांग्रेस के लिए कर्नाटक जीतना बिल्कुल जीवन मरण का प्रश्न है इस समय। जी, शांतनु जी, आपका गणित क्या कहता है, ऊंट किस करवट बैठता? हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, अभी आगे बहुत लंबा वक्त पड़ा हुआ है, पर अभी तक का जो गणित आप देखते हैं, जो इतिहास पर नजर डालते हैं, येदियुरप्पा को भी जानते हैं, सिद्धारमैया को भी जानते हैं, देवेगौड़ा को भी जानते हैं, आपकी नजर में ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है कर्नाटक में? देखिए, बहुत सारे गणित अभी से शुरू हो गई है, कास्ट कैलकुलेशन, रिलीजन कैलकुलेशन। छोटी सी एक चैनल की मिस्टेक थी, मेरा नाम शांतनु गुप्ता है, जब कास्ट की बात आई है, शांतनु कुमार नहीं है जी। तो देखिए, हिस्टोरिकली ये बीजेपी का स्टेट नहीं था, हमें पहले समझना पड़ेगा। 94-98 तक भी केवल मात्र 40 सीट आती थी। पहली बार 2008 के चुनाव में 110 सीट आई, येदियुरप्पा को सीएम बनाया गया। 3 साल बाद कुछ केस हुआ उनके खिलाफ, फिर वो उससे बरी भी हो गए, तो थोड़ी सी बीजेपी फिसली वहां पे। फिर 2013 में येदियुरप्पा ने अलग पार्टी बना ली, कांग्रेस बहुत बहुमत से आई। तो ये बीजेपी का ट्रेडिशनल स्टेट नहीं है। आरएसएस की ताकत से और आरएसएस के काम से बीजेपी ने इसको स्टेट को साउथ में एक्वायर करा है। बीजेपी के लिए साउथ में अकेला स्टेट है, इसलिए बहुत महत्व रखता है। बीजेपी का जो विनिंग जगरनॉट है कि जो हम कहते हैं अमित शाह और मोदी की वोटिंग मशीन जो है वो चलती जा रही है। नॉर्थ ईस्ट पूरा उन्होंने 8 स्टेट में से 7 को कैप्चर कर लिया है, मिजोरम एक छोड़ा है। 4 बची हैं कांग्रेस के पास, केवल 4 बची हैं। अब कर्नाटक कांग्रेस के लिए, इसलिए बीजेपी के लिए तो जरूरी है कि उनका विनिंग जगरनॉट है, एक मूड बना रहेगा 2019 के लिए। कांग्रेस के लिए इसलिए जरूरी है, कांग्रेस कह रहा है कि कांग्रेस की भाई सोनिया गांधी पार्टी करके सबको बुला रही है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी क्यों हो, कांग्रेस क्यों, इनका बिग डैडी क्यों बने। उनके पास मात्र 44 सीटें हैं, एआईडीएमके के पास 37 सीट्स हैं, 30-35 सीट ममता के पास है, वो क्यों ना गठबंधन के लीडर बने। तो राहुल गांधी को इस गठबंधन का लीडर बनाने के लिए उनके पास 4-5 स्टेट तो हो, वो नेशनल पार्टी कैसे कहलाएं? क्या वो पुदुचेरी में सरकार बना के या मिजोरम में सरकार बना के, पंजाब में सरकार बना के नेशनल पार्टी कैसे कहलाएंगी?
तो इसलिए और क्योंकि उनका स्ट्रांग स्टेट है भी कर्नाटका, पुराना ट्रेडिशनल रहा है, तो कांग्रेस के लिए ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जैसा प्रदीप जी ने कहा कि वो 2019 के चुनाव में अगर ग्रैंड ओल्ड पार्टी इसको कहा जाता है और जिसके अराउंड सब कोalition बने, वो बनने के लिए उनके लिए कर्नाटका और आगे फिर तीन चुनाव आने वाले हैं जहां उनकी बीजेपी से सीधे टक्कर है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वो बात बाद में आएगी। लेकिन ये उनका स्ट्रांग स्टेट है, पुराना स्टेट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, सिद्धरामैया की ठीक ठाक वहां पे पकड़ है, तो देखने में मजा आएगा। और एक ये भी होता है अगर अच्छी शुरुआत हो जाए, वैसे तो गुजरात के बाद हौसला बुलंद है कांग्रेस का, मॉरल विक्ट्री हुई, मॉरल, हाँ। लेकिन प्रदीप जी, लिंगायत समुदाय की बहुत बात हो रही है इस चुनाव में। येदियुरप्पा उस कम्युनिटी से आते हैं, किसान नेता हैं, लेकिन बीजेपी की अगर हम रणनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं दलित और ओबीसी को धुरी में रखा है। इस बार पहले के चुनावों की तरह लिंगायत कम्युनिटी को धुरी में नहीं रख रही है बीजेपी। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, ये कहना तो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा कि लिंगायत कम्युनिटी को नहीं रख रही है। जो इस चुनाव में सबसे बड़ा पद हो सकता है, मुख्यमंत्री का पद, वो लिंगायत कम्युनिटी के लीडर को अगर ऑफर कर रही है तो जाहिर है कि धुरी जो है, केंद्र जो है उसका लिंगायत से हटा नहीं है। वो एड ऑन कर अपना वोटर बेस बढ़ाना चाहिए। दलित और ओबीसी को जोड़ रही है, आप कहना चाह रहे हैं केंद्र में। उसको मालूम है कि सिद्धारमैया जो है वो ट्रेडिशनल कांग्रेसी नहीं है, ये समाजवादी हैं, जनता दल से आए हुए हैं, जमीन के नेता हैं। इनसे लड़ना, कांग्रेस के किसी नेता से लड़ना ज्यादा मुश्किल है। इसलिए बीजेपी के लिए ये जरूरी है। दूसरा, पिछले चुनाव को देखें अगर 2013 के, तो पार्टी में स्प्लिट हो गया, येदियुरप्पा बाहर चले गए थे, श्री रामुलु ने अलग अपनी बीएसआर कांग्रेस बना ली थी, उसको भी करीब 3.5-4% वोट मिले थे। तो कुल मिलाकर देखें तो अगर वो स्प्लिट न हुआ होता तो शायद, अब तो शायद ही कह सकते हैं, ये प्रेडिक्ट करना, ये आकलन करना बड़ा मुश्किल है कि उस समय क्या होता, लेकिन शायद अगर नहीं जीतती तो भी इतनी बुरी स्थिति न होती बीजेपी की। अब वो सब फोर्सेज मिल गई हैं। उसके अलावा आप देखिए पिछले 4 साल में क्या हुआ है। 2014 से पहले बीजेपी एक मल्टी स्टेट पार्टी थी, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी थी। आज 4 साल में स्थिति बदल गई है, अब कांग्रेस मल्टी स्टेट पार्टी रह गई है, बीजेपी नेशनल पार्टी बन गई है। तो उसका जो विनिंग मोमेंटम, और जो नहीं, एक ये भी चीज है कि 2014 के बाद से कांग्रेस देखिए, कोई भी पार्टी चुनाव हार सकती है, जीत सकती है, ये चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस 2014 के बाद से जिन राज्यों में हार रही है वो एक तरह से डेसिमेट हो रही है, सफाया हो रहा है उसका, रूलिंग पार्टी से सीधे तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बन रही है। ये कांग्रेस के लिए ज्यादा चिंता की बात है। ऐसे में अब ये राहुल गांधी की लीडरशिप का भी सवाल है। इस कर्नाटक के चुनाव से उनकी लीडरशिप की क्या पोजीशन होगी ये भी तय होगा, कांग्रेस के अंदर नहीं, कांग्रेस के बाहर। बाकी लोग उनकी, देखिए अभी भी एक रिलक्टेंस है बाकी दलों में राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने का। अगर कर्नाटक कांग्रेस हार जाती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, उससे बड़ा सेटबैक होगा राहुल गांधी की लीडरशिप के लिए। सर, इस समय एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी के जो आईटी के मेंबर हैं अमित मालवीय, उन्होंने चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही एक ट्वीट किया और उसमें 12 मई की तारीख का जिक्र किया। जब चुनाव आयोग से ये पूछा गया, बीजेपी नेता हैं अमित मालवीय, जब उनसे ये पूछा गया चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी। उसके बाद इन अमित मालवीय ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत हमसे जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर। सर, ये तो हमेशा से उंगलियां उठती रही हैं चुनाव आयोग के ऊपर की डेट्स का जो होता है वो बीजेपी के कंट्रोल में है, और अगर इस तरीके का कोई ट्वीट सामने आता है तो आप क्या मानते हैं? अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल को हेड करते हैं और उनका जब ट्वीट आया था उस समय इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अभी आपने भी बताया है, और उन्होंने कहा कि 12 तारीख को मतदान होगा और 18 तारीख को काउंटिंग होगी। यह दोनों तारीखें उन्होंने तब बताई थी जबकि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। संयोग से ऐसा रहा कि 12 तारीख जो है उन्होंने पहले जो कही, इलेक्शन कमीशन ने उसी तारीख की घोषणा की है। 18 तारीख की जगह 15 तारीख को वोटों की गिनती है। लेकिन इस बात को लेकर के चर्चा तेज है। चुनाव आयोग से पूछा भी है कि अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल को हेड करते हैं और अगर वो ट्वीट करते हैं कि 12 तारीख को कर्नाटक में वोटिंग होगी, यह बात उनको कैसे पता है? इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस बात पर हम नोटिस लेंगे और जरूरी पड़ेगा तो कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन इस बात की, आप अगर ट्वीट देखेंगी, और ट्वीट को मैं लगातार फॉलो कर रहा था तो उन्होंने ट्वीट अभी डिलीट कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि
इलेक्शन जो है कर्नाटक में 12 तारीख को है, काउंटिंग 18 तारीख को है। तो किसी ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं, तो उन्होंने एक चैनल का नाम लिया कि फ्ला चैनल चला रहा है। उस चैनल पे मैं जाने की जब कोशिश कर रहा था तो वहां ऐसा कुछ चला नहीं या मैंने देखा नहीं। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर लिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा कुछ भी है तो इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा और इस बारे में कार्रवाई की जाएगी। सर, अब आप हमसे जुड़ ही गए हैं और चुनावों पर चर्चा है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 224 सीटों के लिए लड़ाई है। कांग्रेस जी, प्रदीप जी पहले कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनसे पहले आपसे सवाल लेने से। ये उन्होंने ट्वीट किया जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन की डेट अनाउंस कर दी, उससे पहले या उसके बाद? क्योंकि उससे पहले प्रदीप जी, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लेकिन वो शुरुआती दौर में थी कि सुरक्षा के इंतजाम ऐसे होंगे, मीडिया को इस तरह का एहतियात बरतना होगा, अभी से आचार संहिता लागू हो जाती है। यह सब जो औपचारिक बातें होती हैं जब चुनाव आयोग कह रहा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी समय तारीख आ जाती है ट्वीट के जरिए कि 12 तारीख को इलेक्शन। अगर वो नोटिफिकेशन की डेट के बाद बोलते तो वो तो कोई अंदाजा लगा सकता था जिनके की 7 दिन जो है नॉमिनेशन के होंगे। नहीं, नोटिफिकेशन की डेट से पहले। ठीक है राणा सर, हम लोग लिंगायत और बक्का लिंगा पे बात कर रहे थे। अब जब चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया और आप कर्नाटक के गणित में माहिर हैं, जेडीएस का क्या स्टेटस रहेगा? देवेगौड़ा और कुमारस्वामी कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर आप मानते हैं कर्नाटक के चुनाव में? नहीं, ये डिसाइडिंग फैक्टर हैं। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को जितनी सीटें मिली उतनी ही सीटें जेडीएस के हिस्से में भी गई थी। बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा येदियुरप्पा हो गए थे पिछली बार के चुनाव में। इस बार मुझे लगता है कि सिद्धरामैया बहुत सधा गेम खेल रहे हैं और उनकी हर चाल बहुत सधी हुई है। आप देखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने दलितों के लिए जितनी योजनाएं लागू की हैं और दलितों को जितनी सहूलियत और फायदा सरकारी योजनाओं के जरिए पहुंचाया है, उससे उन्होंने उस 25% आबादी को अपने हक में करने की पूरी कोशिश की है। पिछले 1 साल में बहुत सारी रकम और बहुत सारा पैसा दलित योजनाओं पर या दलित कल्याण योजनाओं पर उन्होंने बहाया है। अगर ट्रैक्टर आप लेती हैं तो 2 लाख रुपए की सब्सिडी आपको मिल जाती है। हाई एजुकेशन में कोई दलित लड़का है तो उसको लैपटॉप मिल जाता है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो दलितों के लिए। आप देखिए 25% वहां दलित आबादी है। जिस कुर्बा जाति से सिद्धरामैया आते हैं 7% के आसपास वो खुद ही हैं। मुस्लिम आबादी 12.5% के आसपास होती है। तो अगर इन तीनों को वो चाहते हैं कि लामबंद कर लें और लामबंद करके वो 40% से ऊपर का आंकड़ा जो है वो पार कर जाते हैं, यानी कि यह अगर समुदाय तीनों कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने लिंगायतों के बीच में फूट डालने की कोशिश की। लिंगायतों को हिंदुओं से अलग हैसियत देने की जो कोशिश की है सिद्धरामैया सरकार ने, सिर्फ इसीलिए कि बीजेपी एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है और इस वोट बैंक में आप 2 फाड़ कर दीजिए, उसमें से कुछ भी आपको फायदा हो जाता है, कुछ भी वोट आपकी तरफ आ जाता है तो आपके लिए ये फायदे का सौदा होगा। जी ठीक है, लेकिन आपका सवाल रह गया था। मैं यह देवेगौड़ा चूंकि वो कालिगा समुदाय से आते हैं और दूसरा बड़ा समुदाय है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि पहले ये कहा जाता था कि 17% के आसपास लिंगायत हैं, 12% के आसपास वो कालिगा हैं और इन दोनों समुदायों की ही पकड़ कर्नाटक की राजनीति पर रही है। संयोग से पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जो इन दोनों समुदायों से बाहर से आए हैं, कुर्बा जाति से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पिछले साल इसी सरकार ने जनगणना करवाई थी आंतरिक जानकारी के लिए, इंटरनल मतलब जानकारी के लिए, लेकिन वो बाद में मीडिया के जरिए बाहर आ गई। 10% लिंगायत हैं कर्नाटक में और 8% वो कालिगा हैं। इसी के आधार पर अब चुनाव की रणनीति और चुनाव के समीकरण बाकी तय किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के जरिए। लेकिन देवेगौड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं और वो रहेंगे। जी सर, आप बने रहिए हमारे साथ। अब तमाम तीनों गेस्ट हमारे साथ बने हुए